हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। नाउ स्टूडेंट्स, गिव योर बेस्ट। टाइम इज वेरी वेरी लिमिटेड। वी हैव ओनली 1 मंथ। गिव योर बेस्ट एंड अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस जितना भी हो सके। सो दिस 1 मंथ एंड लास्ट, गिव योर बेस्ट एंड दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। सो आई एम गिविंग माई स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन in this. So let's start with the further. Now start with the section number. Till there we have already completed in a last video. So now we are starting with the power of the board. That is the section number 179. So what is the power of the board? So मैं मतलब it's a revision video students. Firstly you should complete your first revision. Firstly like deep study and then see this video because you can't start students क्या होता है कि classes नहीं करते हैं. They are trying to complete all the concept through the revision video, which is not a right way. If you want to get a success in a shortcut, I'm sorry, it is not a possible at all. You have to go through with the deep down study. So this is the success mantra. So let's start section number 179. That is talking about power of the board. What is the power of the board? First, board is entitled to exercise all the same power as the company is authorized. जो company के पास same power होती है, as it is board of directors having placing of restriction on the exercising of the power. So there is a few things कि अब board के ऊपर कौन power करेगा, like who will be override the power of the board. So this is कि article में मेमोरेंडम में हम इसमें क्या है लिख सकते हैं कि board is limited to that particular act and the board is not liable to do this particular exercise. सो बोर्ड के जो कंपनी के जो आर्टिकल और मेमोरेंडम होते हैं उसके अंदर लिखा होता है जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरराइड नहीं कर सकते. नाउ लेट्स स्टार्ट. प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द रेगुलेशन मेड इन द जनरल मीटिंग. अगर कोई भी रेगुलेशन बनाया गया है कंपनी की जनरल मीटिंग में, वो कोई भी काम जो कि पास्ट में डायरेक्टर ने करा है, सपोज दैट उसने कोई ऐसा काम करा जो कि अब प्रेजेंटली एक रेगुलेशन पास करा गया कंपनी की जनरल मीटिंग में, तो उसका कोई भी जो काम करा हुआ है अब तक वो इनवैलिडेट नहीं होगा, उसको वैलिड ही कंसिडर करा जाएगा. So there is this is mentioned shall not validate any prior act of the board which would have been valid if that regulation has not been made. So we will consider it as valid. ठीक है. So after post regulation implement होने के बाद, after that if you are doing that particular work, this will be considered as a totally invalid work. So this is all about. Now let's start. Power of the board to exercise by mean of the resolution. Firstly, clear all the drawings. Power of the board, student, this is the most important. You have to learn. Following powers are required by the board by mean of the resolution passed by. मतलब ये जितने भी मैटर्स हैं बोर्ड के पास पावर है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करा के बीआर पास करके मींस बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके इन मैटर्स को वो अपने हाथ से डिसाइड कर सकती है बाय पासिंग अ board resolutions. board meeting conduct करा रही क्या क्या to make a calls. Suppose that shareholders से कोई unpaid call मांगनी है तो they will pass a BR and then they will ask for a shareholder to make a payments of that particular unpaid calls. Okay. Authorize buyback shares of security under section 68 and the same power board of director के पास है कि if they want to buy back the securities they need to pass a board resolution. They can buy back the securities, issue the securities, including the debenture, whether in India or outside the India. Board is having the power to borrow the money. If they want to borrow the money, they can borrow the money only by passing a board resolution. And note, there is a one note that it is to be noted that it is not an exhaustive list. Means there are certain other power भी है जो कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंडक्ट करी जाएंगी. सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बीआर पास करके इनको दे कैन यूज दैट पावर. या फिर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी. हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे सेक्शन 182 मेकिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी. सपोज दैट कंपनी वांट टू कंट्रीब्यूट टू द पॉलिटिकल पार्टी, yes they can contribute, but after passing a board resolution they can contribute. Okay, so this is power. And filing of casual vacancy. If they want to file the casual vacancy before they can appoint, I already told
161 सबसेक्शन 4 में कि अगर मान लो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो चुकी है तो बोर्ड क्या करेगा, अपॉइंट करेगा एंड देन नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसको हम लोग मेंबर से अप्रूवल करा लेंगे. अप्रूविंग ऑफ ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, सेक्शन 188 में मैं आई विल टेल यू कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं जिनको बोर्ड अप्रूव कर सकता है. यस, देयर इज हैविंग द पावर ऑफ द बोर्ड दैट दे कैन अप्रूव द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 188. गिविंग ऑफ अ लोन और मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. Students, all these sections I will study later as come as in a sequence. I will tell you. Giving of a loan or making an investment in a shares of other body corporate under section and bypassing and consent of all the director present is also required. Means for this particular matter, if you want to give a loan or investment in the share of other body corporate, so board resolution shall be valid only if all the director presented in a meeting, they have to give their consent. If there is any one single vote who is against that particular matter, so it will not be considered as a board resolution. It will be totally invalid board resolution. Now, this is happening only for this particular matter, not rest of the matter. It will not be applied. Okay. Now, last but not least, appointing a person as a managing director. I will tell you in a section number 203. Next chapter we will discuss about it. If you want to appoint managing director, board can appoint an office holding, managing in another company, जो भी details हैं. और इसमें भी हमें all director present in a meeting, they have to give their consent. So for this two particular matter, we have to consider that all the board's directors present in a board meeting, they have to give their all consents. Means if there is an 5 director present in a meeting, so all 5 need to give their consent. So then it will be considered as a board resolution pass. Now, permission of to board to delegate. Suppose that if board के पास बहुत ज्यादा काम है या जो भी इशू है, if they want to delegate their power, वो अपने पावर्स को डेलीगेट करना चाहते हैं, तो किस किस को वो पावर्स को क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं. सो देयर इज D2F. इन्होंने कहा है कि डेलीगेट्स द पावर स्पेसिफाइड द बोर्ड पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन D2F. मींस अब में जो D2F थे उनको दे कैन डेलीगेट. डेलीगेशन में भी मेड ऑन फॉलोइंग कंडीशन एज स्पेसिफाइड. कमेटी ऑफ डायरेक्टर को हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, या फिर एनी अदर प्रिंसिपल ऑफ अ कंपनी, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफिस, हम इनको ये पावर्स क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अगर डीप में पढ़ाऊंगा तो रिवीजन वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप स्टडी मटेरियल टेबल पे लेके बैठे हो एंड आई एम कंटिन्यूअसली स्पीकिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यूज दिस पेन and mark, yes, I study. So this will help you to getting a more attention. Okay. Imposing of restriction by the other shareholder. If shareholder wants to make any restrictions on the power of the board, then they can impose their restrictions and it will be considered as a valid. Now board cannot use that particular power. Okay. So this is all about the company through general meeting has imposed the penalty on restrictions and conditions on the exercise of the board by the general meeting. Okay, so this is all about restrictions. अगर डायरेक्टर मेलाफाइडली एक्ट करता है तो उस केस में क्या होगा, शेयर होल्डर्स आएंगे और दे विल कंसिडर दैट वन रॉन्ग कर रहे हैं या फिर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए. तो उस केस में क्या है, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है टेक देयर डिसीजंस to wrong done by the director. When all the director are interested in a particular transaction, पहला केस क्या था, अगर डायरेक्टर मेलाफाइडली काम कर रहा है तो उस केस में स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं they will take a decision and it will be considered. Okay, now there is a second case. What is when all the director are interested in a particular transaction. अगर suppose that कंपनी के सारे ही डायरेक्टर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड है तो उस केस में क्या होगा, they are therefore incompetent to act due to the absence of a quorum. When there will be no quorum because we are पास करने के लिए क्या चाहिए, तो पहले quorum चाहिए. quorum कैसे बनती है, मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर. बट इस केस में क्या है, सारे ही डायरेक्टर्स पर्टिकुलर मैटर में इंटरेस्टेड है, तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्टर शैल डिसाइड देयर मेजॉरिटी एंड वो लोग एंटरटेन करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेरी को. नाउ व्हेन देयर इज हैपन टू बी डेडलॉक इन अ मैनेजमेंट डेडलॉक कब होगा, when there happen, suppose that management deadlock हो गया because the director are not talking term, unwillingness to act, तो
जो शेयर होल्डर्स होंगे वो कंपनी को रन करेंगे। अब एग्जेम्पशन, अब ये पावर ऑफ द बोर्ड क्या है, ये एग्जेम्पशन दी गई है कंपनी को, क्या है, लोन्स लेना, लोन्स प्रोवाइड कराना, इन्वेस्टमेंट रिसीव करना, इन्वेस्टमेंट फर्दर करना। सो ये तो उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस हो गया। तो इस केस में क्या है, सॉरी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी, जो कि ऑल कंसेंट होनी चाहिए। तो उस केस में क्या है, बैंकिंग कंपनी का भी वैलिड रीजन, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का काम करना, इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि डेली रूटीन टास्क, so this is the daily routine task for a banking company, that's why they are giving the exemptions. So acceptance of a deposit of a money by the banking company in ordinary course of the business from, so this is a normal, so further the placing of money deposit with another banking or such companies, so this is also a heavy valid bar. Now let's start with the section number 80 180, above section में 79, that is talking about power. Now there is talking in respect of after obtaining the consent of special resolution. ये मैटर ऐसे होंगे जिनमें सबसे पहले हमें एसआर पास करना पड़ेगा, तभी वो पावर एक्सरसाइज करी जाएगी। मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पावर सेल बी एक्सरसाइज आफ्टर obtaining the consent by the special resolution means, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, with the consent of a company not on it simply by passing up, पीआर तो पास होगा, that is the mandatory, but apart from that we have to, मतलब एसआर भी हमें पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, कौन कौन से मैटर है, दीज आर द मैटर जिनमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा इन अ जनरल मीटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैटर है टू सेल और लीज और of whole या फिर substantially the whole of undertaking of a company, suppose that कंपनी की कोई अंडरटेकिंग है, हम उसको या तो कोई ब्रांच कुछ भी है, हम उसको सेल करना चाहते हैं, लीज पर देना चाहते हैं, तो उसकी बात, दिस इज नॉट अ डेली रूटीन वर्क। सो एक तरह से एक असेट्स है, हम जिसको लीज पर देना चाह रहे हैं या फिर सेल करना चाह रहे हैं, सो फर्स्टली वी हैव टू, मतलब दिस इज अ वैलिड, we have to pass a special resolution. Impose of a condition by the shareholder, impose of a condition by a क्या, तो ये सारी चीजें हमारी कंडीशंस जो है शेयर होल्डर स्पेसिफिक टू ऑथराइज द कंपनी टू इफेक्ट हो गया हमारा, सच रिडक्शन शैल बी इफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द, अब स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, लेट्स स्टार्ट। अब व्हेन देयर इज नो नीड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन, सपोज दैट सेल करना, लीज करना, अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है, सो ऑफ कोर्स देयर इज नो नीड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन, डेली रूटीन का काम है, सो देयर इज नो नीड टू गेट अ कंसेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। नाउ क्लीन टाइटल ऑफ द बायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द बायर, और ये हमारा गुड फेथ में हो रहा है, टाइटल शैल नॉट बी अफेक्ट विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग the consent of the company by a special resolution, means जहां पर clean title है buyers का, कि suppose that कि yes they want to sell और lease, but उस केस में क्या है, हमने मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करा, और बट हमने गुड फेथ में काम करा, तो हम उसको कंसिडर करेंगे वैलिड, और उस केस में क्या है, बाद में एसआर पास हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब है विच मीन्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी एक्सीड द 20%, means 20% of its net worth as per the last audited balance sheet. Get my point? या फिर 20% of the total income of the company during the previous audited balance sheet. Means what is the definition of the undertaking? More than 20% of its net worth या फिर more than 20% of its total income of the company. अब आ जाओ substantially whole of the undertaking का मतलब क्या है, वो भी 20% or more of the value of the undertaking as per the last audited balance sheet. Okay, so this is all about the undertaking
what is the meaning of the undertaking. So इसमें ये भी कहा गया है, if you want to say that कि restoring to sale or substantially the whole, तो postal ballot के through या जो भी मतलब आप special resolution pass कर रहे हो, what will be the medium. अब what will be the second matter, to invest otherwise in a trust security. ठीक है, आपको एसआर पास करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अदरवाइज इन अ ट्रस्ट सिक्योरिटी. ट्रस्ट सिक्योरिटी को छोड़ के अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी डीमर्जर अमलगेशन. सपोज दैट कोई भी अमाउंट या फिर ऑफ द कंपनसेशन रिसीव करा जा रहा है जो रिजल्ट है किसका, डीमर्जर का, मर्जर का, अमलगमेशन का. तो इट इम्प्लाइज दैट इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनसेशन इन अ ट्रस्ट security, then there is no need to opt in the consent from the members to a special resolution. If it is a case of trust security, then there is no need to call the special resolution. If it then the trust securities, if you want to make an investment, if you want to borrow the money, then there is also need to pass a special resolution. But when to borrow the money, they can borrow. But यहाँ पर क्या है, they are borrow the money acquisition. ठीक है, so what will be the limit? Now we are discussing about it. That will be the limit. In a simple word, borrowings. मतलब अगर इस particular limit से ज़्यादा है, then we need to find मतलब pass the special resolution. If it is resolution, what? Suppose that borrowing the money. सबसे पहले जो borrowed amount है, जो already उसको भी आपने total करना पड़ेगा. Free reserve, securities premium, apart from temporary loan obtained from the company's bank in ordinary course of the business. जो टेम्परेरी लोन है ऑब्टेन करे गए हैं फ्रॉम द बैंकर कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, उसको हम सेट असाइड कर देंगे, बिल्कुल साइड कर देंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब क्वेश्चन बनता है, सो जस्ट लर्न इट. सो नाउ देयर इज अ I am telling you that is just a minute. अब बोरोइंग्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? बोरोइंग्स में जो लोन रेज करा गया है फॉर द मीटिंग द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट इंक्लूड एनी टेम्परेरी लोन. मतलब सारे बोरोइंग्स इंक्लूड होंगे बट एक्सेप्ट द टेम्परेरी लोन्स. अब आ जाते हैं हम लोग कि टोटल. सो फ्री रिजर्व एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट, हम वो फिगर वहां से फैचअप कर लेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिविडेंड, मतलब देयर इज अ सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो इट विल बी द सम ऑफ 3. अगर इससे अबव आपने अमाउंट रेज करा है तो उस पर हमें फिर विद इन 6 month है फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन. शॉर्ट टर्म है, वी नीड नॉट टू कंसिडर इट बिकॉज दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लोन. ओके, सो बट शैल ऑल्सो नॉट इंक्लूड जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के लिए इश्यू करे गए हैं. एग्जेम्पशन वही बैंकिंग कंपनी को जरूरत नहीं है बिकॉज उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है. अब आ जाते हैं, सो अगर इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आप लोन बोरो कर रहे हो तो उस केस में क्या है, हमें रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अब वो लिमिट क्या है, इन तीनों को वी हैव टू एग्रीगेट दीज 3 फिगर्स. व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. एंड देन सपोज दैट इन तीनों का सम आया 150 करोड़ और हमें लोन चाहिए 200 करोड़, तो वी हैव टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर 50 करोड़. ठीक है, सो दिस इज द समरी. अब आ जाते हैं, what there is another special resolution we have to pass to remit or to give the time for the repayment of any debt due from the director.
सपोज दैट हम कोई रेमिटेंस देना चाहते हैं डायरेक्टर को, या फिर डायरेक्टर ने कोई लोन ले रखा है, हम उसे वेव करना चाहते हैं, या फिर डेट का जो टाइम पीरियड है हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या है, डायरेक्टर आपस में दे विल कोऑर्डिनेट एंड दे विल ट्राई टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इस चीज पे आई मतलब कीपिंग द आई ऑफ द शेयर होल्डर, तो इस केस में क्या कहा गया कि अगर ऐसा कुछ काम होता है तो इस केस को वैलिड तब माना जाएगा जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा मिड जनरल मीटिंग में मेंबर्स के द्वारा। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन टू द बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी को करना है कंट्रीब्यूशन, तो उस केस में कोई कंडीशन नहीं है कि आपको मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, लेकिन अगर आप बोनाफाइडली कंट्रीब्यूट करना चाहते हो चैरिटेबल फंड को, तो उस केस में क्या है, आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जो कि मैं आगे भी सेक्शन में बताऊंगी। ठीक है। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट करना चाहती है 15 करोड़ नेशनलाइज बैंक से, यही अभी सेक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल है, शेयर कैपिटल ये है, रिजर्व ये है, लोन ये है, अनसिक्योर्ड लोन ये। तो इस केस में क्या है, टोटल कितना हुआ, 5 5 10 10 15 कितना, 25 और 5 30, और हमें लोन कितने का चाहिए, 15 का। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन क्या करना होता है, शेयर कैपिटल फिर रिजर्व। तो ये कितने का बैठ रहा है, 10 का। जो ऑलरेडी लोन्स है 20 के हैं, और लेकिन 10 है, वी हैव टू टेक द अप्रूवल फॉर एक्सीडिंग द 15 करोड़, बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑफ 15 करोड़। सो बोर्डिंग जो है हमारा शुड बी एग्रीगेट होना चाहिए, लिमिट हो गया हमारा, टेम्परेरी लोन एक्सीड करे जाएंगे, फिगर हो गया हमारा लोन इतना है जो कि एक्सीड हो गया हमारा, और इस केस में क्या इन द व्यू हो गया हमारा शुड टेक द स्पेशल रिजोल्यूशन टू पास, सो दैट, क्योंकि यहाँ पर पूरे 15 करोड़ के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 करोड़ की लिमिट है, वी ऑलरेडी बोरो द सम दिस पर्टिकुलर अमाउंट, तो एक्सीड हो रहा है, तो पूरे अमाउंट के लिए हमें लेना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 180, मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शंस है, सेल नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट कंपनी। ये प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे हैव नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न 192 विद द रजिस्ट्रार। ओके, वी आर कंक्लूडिंग here, so we will discuss from the contribution part in the next video. Till that time, take care, bye bye.